Prime Minister Narendra Modi has arrived at Rashtrapati Bhavan. These are big breaking developments coming in. The Prime Minister has arrived at Rashtrapati Bhavan. Remember, he had chaired, of course, the final cabinet meeting of Modi 2.0 this morning. Today, now he's reached Rashtrapati Bhavan. Prime Minister Modi is likely to, of course, okay, these are the latest developments coming in. He has reached Rashtrapati Bhavan as we speak. Anand Singh is joining us for more details on this story. Prime Minister reaching Rashtrapati Bhavan. He's reached Rashtrapati Bhavan after chairing the final cabinet meeting of his second term, Anand, this morning. Yeah, Prime Minister earlier today in the day, he chaired a meeting of the Union Cabinet, and there he discussed a lot of things with his ministers, as he will be also chairing a meeting of the NDA leaders in the evening, where all the NDA allies, that is from 26 or 27 parties, will be attending that meeting in the national capital, and they will discuss about the future course, or that how they need to form the government, as the BJP has fallen short of the majority, and it is only after the support of the NDA allies that the BJP is in a position to form a government at the center. So the Prime Minister has now arrived at the Rashtrapati Bhavan to meet President Draupadi Murmu over there to discuss the future course, and he is even likely to... What is going to be the next course of action? Will the Prime Minister now, given his resignation to Draupadi Murmu, will she ask him to continue? Will he possibly stake claim today itself, or wait till he gets the letters of support of the NDA allies and do it perhaps sometime tomorrow? Anand, what happens next? Yeah, look, speculations are rife that the Prime Minister might be submitting his resignation letter to the President. However, as the BJP is the only single largest party in this Lok Sabha elections, has it emerged as the single largest party. So he will be also taking the claim for the for forming the next government at the center. And even in the evening, as the NDA partners are supposed to meet, and they will be giving the letter of support to the Prime Minister and the BJP. So the President is likely to ask the Prime Minister Narendra Modi to continue with the government and to take a decision whatever is required. Back to you then. Absolutely. Absolutely. And Anand, how soon could that happen? He, of course, has reached Rashtrapati Bhavan right now. He could submit his resignation immediately. That's pretty likely. And how soon could he be invited to form government? How soon could that next appointment be with the Rashtrapati Draupadi Murmu? Because the NDA meeting is today at 4:30 p.m. Could the letters of support be taken today itself? Anand Singh. Yeah, look, as far as Prime Minister's resignation is concerned, Prime Minister is likely to submit his resignation, and he will also inform the President that as the BJP is the single largest party and it has the support of the NDA allies, and with that it has got the majority mark of 372, as the NDA allies have got around 292 seats. Manohar Keshri also is joining us for more details on this story. Manohar Keshri is also in the national capital reporting on this big story. Manohar, Prime Minister has reached Rashtrapati Bhavan. What happens next? Will the PM be submitting his resignation to President of India, Draupadi Murmu? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर पहले राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं, क्योंकि 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें मोदी कार्यकाल 2.0 का आखिरी कैबिनेट बैठक थी, और इस बैठक में लोकसभा भंग करने का फैसला लिया गया, क्योंकि एक सिस्टम होता है, इस सिस्टम के तहत इस्तीफा देना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री बैठक के बाद जो है राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं, वहां द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपेंगे, और उसके बाद आगे ओथ लेने की प्रक्रिया शुरू होगी, फैसला लिया जाएगा। उससे पहले आज 4 बजे एनडीए की बैठक है, और उस बैठक में तमाम घटक दल मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल मनोहर, और बड़ा सवाल ये है कि एनडीए घटक दल से समर्थन पत्र कब लेंगे प्रधानमंत्री? क्या आज की बैठक में ही लिया जाएगा? क्या आज शाम को दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी stake claim कर सकते हैं? Could he go back to Rashtrapati Bhavan today itself to stake claim to form government, or will that happen tomorrow? Because as the leader of the largest party and the largest alliance, he's going to get first claim to stake claim to form government. हाँ, देखिए, बिल्कुल अगर आप देखेंगे जो सोर्सेज बतला रहे हैं कि 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ ले सकते हैं, तो इससे पहले ये तमाम प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो आज 4 बजे जब एनडीए की बैठक होगी, तो एनडीए की बैठक में जो घटक दल हैं, चाहे हम नीतीश कुमार की बात करें, मतलब जनता दल यूनाइटेड के जो 12
सांसद जीत करके आए हैं। टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की बात करें, पवन कल्याण जो जनसेना के हैं, आजसू से सुदेश महतो हैं, उसके अलावा तमाम जो घटक दल हैं वो अपना समर्थन पत्र पीएम नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इंडिया ब्लॉक के भी लीडर्स नजरें गड़ाए हुए हैं, लगातार ध्यान रखे हुए हैं कि आपस में संपर्क करके कहीं कुछ अगर बात बनती है तो हम आगे बढ़े। लेकिन अभी तक ये खबर है कि नरेंद्र मोदी जो है सो आज एनडीए की बैठक करेंगे, उनमें तमाम घटक दल अपना समर्थन पर सौंपने जा रहे हैं और उसके बाद आगे की चर्चा होगी कि शपथ लेने के दौरान कौन कौन से लोग शपथ ले सकते हैं। जी बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति भवन, जैसे आप हमें बता रहे हैं। आनंद सिंह के पास मैं लौटता हूं। आनंद, you know, the single largest party is the BJP, the single largest coalition is the NDA. So the first invitation will go to the PM to be invited to, stake claim to form government, isn't it? That's the procedure. Yeah, if you talk about the procedure, then there is clearly, it's properly defined that whichever party is having the majority in the Lok Sabha, that party will get the time for taking claim in the government. And similarly, that has been the past precedent of the several governments when the single largest party have claimed to form the government at the center with president's consent. So this is how the entire parliamentary functioning has been being carried out in last several decades, and that will be again at that will be clearly visible today also when Prime Minister will go and take the claim to form the government with the President Draupadi Murmu. So these are the procedures that Prime Minister needs to follow before forming a government. So Prime Minister Modi will Absolutely. be also Anand, stay holding with a us. We meeting also have Ashif Iqbal now joining us live on the broadcast as well. Ashif Iqbal, Prime Minister Narendra Modi has reached Rashtrapati Bhavan. Has he submitted his resignation now to Draupadi Murmu, President of India? What's the latest information you can share with us? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि इस वक्त सबसे बड़ी चीज़ है कि इस वक्त मैं एलजेपी के ऑफिस पे हूं और यहाँ हमारे साथ एलजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट जिनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी और वो अपने 5 सांसदों को जिताकर यहाँ ले आए। जब ये जा रहे थे तो भी इस तरह की तैयारी करके लेकर गए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि जब जा रहा हूँ तो विजय श्री लेकर ही आऊँगा। और आज विजय श्री के साथ मतलब 5 सांसदों को ये लेकर 100% स्ट्राइक रेट है बिहार में एलजेपी का, जो सरकार में शामिल होने के लिए भी तैयारी कर रही है। और आज एनडीए की बैठक में भी राजू जी कैसे कहेंगे किस तरीके से इतनी बड़ी चुनौती उसका सामना नहीं, चुनौती बड़ी थी लेकिन बिहार के लोगों ने आशीर्वाद दिया और हमको इस बात की थोड़ी है कि हम लोग 40 की 40 सीट जीतना चाहते थे लेकिन कुछ चूक हुई है जिसका सब दल मिलकर के बात करेंगे। लेकिन फिर भी बिहार के लोगों ने एनडीए को अपना पूर्ण आशीर्वाद दिया और देखिए आज तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनाने को लेकर कितने आश्वस्त सरकार, मतलब इसमें कोई आश्वस्त की बात नहीं है, इसमें कोई शक सुबह की बात नहीं है। यहाँ समझिए कि सरकार बनेगी और तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने। मुख्यमंत्री जी के साथ आप भी गए थे मिलने के लिए, तो मुख्यमंत्री जी का क्या है, क्योंकि उनको लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही है। आप तो खुद देखिए ये कयास बाहर मतलब मीडिया के लोगों का है। मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से आ गए हैं। मुख्यमंत्री जी दिल्ली आपको मैं बता दूं और आज बैठक में वो भी रहेंगे और सब कुछ एकदम बातचीत हो गई है। अब आज तय हो जाएगा कि कब प्रधानमंत्री तीसरी बार ओथ लेंगे। आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है बहुत कुछ तय हो चुका है, कुछ भी बाकी नहीं। तय तो बहुत कुछ, बैठेंगे नेता तो हो ही जाएगा और हमारे नेता लगातार बड़े नेता प्रधानमंत्री और अमित शाह जी, नीतीश कुमार जी को लेकर कोई उहापोह नहीं, कोई मैं आपको मतलब पूरी तरह से आश्वस्त कर रहा हूं कि नीतीश कुमार जी पूरी मतलब उससे एनडीए के साथ खड़े। उनसे ये भी जरूर पूछिए आशिफ, चलिए वो चले गए हैं क्योंकि आशिफ ये दिलचस्प बात ये है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक ही फ्लाइट में आए थे आज और पहले नीतीश कुमार सामने वाले रो में बैठे थे फिर और तेजस्वी यादव पीछे बैठे थे। फिर अचानक एक और तस्वीर आती है कि दोनों साथ में बैठे हैं, दोनों बातचीत कर रहे हैं। तस्वीर क्या कहलाती है?
देखिए बिल्कुल वो तस्वीर बहुत कुछ कहलाती है और मैं आपको बताऊं कि वो तस्वीर हमने ही मतलब ये इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स ने ही पहले ब्रेक किया उस तस्वीर को। हम फ्लाइट में एक हमारे साथी थे जिन्होंने हमें व्हाट्सअप किया, व्हाट्सअप के जरिए भेजा, तुरंत भेजा और आपको बताऊं कि वो तस्वीर बहुत कुछ बताती है। और इसीलिए इस पर जब हमने अभी चिराग पासवान से हमने जब बात की तो चिराग पासवान भी बहुत स्पष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन ये लोग नहीं मालूम है कि नीतीश कुमार को समझना सिर्फ नीतीश कुमार के बस की बात है। नीतीश कुमार को कोई नहीं समझ सकता है। नीतीश कुमार का निर्णय सिर्फ नीतीश कुमार ही ले सकते हैं। नीतीश कुमार के निर्णय की गारंटी कोई नहीं ले सकता। आपको याद होगा कि इस चुनाव में तेजस्वी यादव बार बार घूम के यही कह रहे थे प्रधानमंत्री से, वो ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी जरा बताइए आप रोजगार की गारंटी लेते हैं, इसकी गारंटी लेते हैं, क्या हमारे चाचा की गारंटी लेंगे? और आज स्थिति वही पहुंच गई है क्योंकि तमाम निगाहें जो है, नजरें जो है वो नीतीश कुमार पे टिकी हुई हैं क्योंकि नीतीश कुमार ने अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं किया कि वो किसके साथ है और किसके साथ नहीं है। क्योंकि बार बार ये तो कहा जा रहा है कि एनडीए के साथ है, वो तमाम चीजें हैं, बैठक में भाग लेने, लेकिन बैठक में भाग लेने से पहले कोई एक ऐसा ट्वीट नहीं है, बल्कि 12 घंटे में मैं आपको बताऊं कि 12 घंटे के अंदर एक भी ऐसा ट्वीट नहीं है जिसमें ये स्पष्ट करते हुए नजर आ रहे हो नीतीश कुमार कि वो एनडीए के साथी हैं और एनडीए के साथ मिलकर सरकार में शामिल हो रहे हैं या सरकार बनवा रहे हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात आपने कही, ये बड़ी दिलचस्प बात आपने कही। पर्यावरण के बारे में तो ये कह रहे हैं। आशिफ, वहां पटाखे की गूंज तो चल रही है, हम आपके पीछे सुन पा रहे हैं, मगर जैसे आप कह रहे हैं ये पटाखों से ज्यादा नीतीश कुमार की चुप्पी गूंज रही है क्योंकि कोई ट्वीट सामने नहीं आया, मीडिया के सामने भी कोई स्टेटमेंट अब तक उन्होंने दिया नहीं है। आज सिर्फ सुबह कहा था सरकार तो बनेगी ही, ये नहीं कहा एनडीए की सरकार बनेगी कि किसी और की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव ने तो खुल के कहा है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। मैं एक बात और बताऊं आपको कि सबसे दिलचस्प बात यह रही कि नीतीश कुमार को समझना कितना मुश्किल। आप सोचिए कल सुबह जब वो नतीजे अभी रुझान आ रहे थे तो उस वक्त सम्राट चौधरी ने उनसे टाइम मांगा, उन्होंने उनको वक्त दे दिया, लेकिन उसी वक्त के दरमियान उनकी स्थिति और मजबूत हो गई और उसी दरमियान इंडिया गठबंधन से दो बड़े नेताओं ने, मैं नाम नहीं खुलासा कर सकता क्योंकि कुछ सोर्सेज के मर्यादा होते हैं, वो दो लोगों ने उनको फोन करके उनको बधाई दी और कहा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि बधाई का सिलसिला इंडिया गठबंधन के नेताओं ने पहले दिया एनडीए के नेताओं से। उसके बाद जब सम्राट चौधरी उनसे मिलने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मेरा लंच का टाइम हो गया, मैं लंच करने के बाद मिलूंगा। और मैं आपको बताऊं कि कल से लेकर आज तक किसी भी बीजेपी के नेता से उनकी मुलाकात नहीं हुई है, बल्कि मुलाकात किससे हुई तो एक और छोटे भतीजे से और वो चिराग पासवान से। चिराग पासवान सुबह मिलके आए हैं अपने 5 सांसदों को लेकर। उसके पीछे भी दिलचस्प वाकड़ा इसलिए है क्योंकि मैं आपको बताऊं कि चिराग पासवान की पार्टी में 2 सांसद ऐसे हैं जो 2 सांसदों का रिकमेंडेशन खुद नीतीश कुमार ने किया था, समस्तीपुर के सांसद और वैशाली के सांसद। इनका रिकमेंडेशन नीतीश कुमार की तरफ से चिराग पासवान को था और चिराग पासवान ने रिलेशन बिल्डअप करने के लिए, एक दूसरे के मान मर्यादा को समझने के लिए उन दोनों सांसदों को टिकट दिया और वो दोनों सांसद जीत के चले आए। और उस जीतने के बाद जो पहली मुलाकात, पूरे इस आप घटनाक्रम को देखेंगे तो पहली मुलाकात सिर्फ एक भतीजे से हुई, वो चिराग पासवान से, उनके साथ 5 सांसद। 2 घंटे के बाद फिर जब दूसरे भतीजे से मुलाकात होती है तो फ्लाइट में होती है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि फ्लाइट की सब कुछ तय था पहले से, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अचानक वो एयरपोर्ट पे पहुंच गए हों और नीतीश कुमार की मुलाकात हो गई हो, अचानक उन्होंने आगे पीछे का सीट तय कर लिया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बल्कि हाँ, सीट जरूर आगे में एक बच्ची बैठी हुई थी जिसको राज्यसभा के सांसद जो संजय यादव हैं उन्होंने कन्विंस किया और उन्होंने उस बच्ची को पीछे बैठाया और तेजस्वी यादव को आगे बैठाया। ये तस्वीर नीतीश कुमार के लिए भी बहुत काम की तस्वीर है। मगर चिराग पासवान ने दावा किया कि नीतीश कुमार पूरी तरह से एनडीए के साथ हैं। अभी आप लोजपा के अध्यक्ष से भी बात कर रहे थे, उन्होंने भी यही दावा किया है। चिराग पासवान इनफैक्ट हैज आल्सो क्रेडिटेड Nitish Kumar for the NDA's performance in the state of Bihar. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.